السلام علیکم میرے فیس بک کے پیارے بھائیو، آج ہم آپ کو شکیل بھائی کا انٹرویو لینے ان کے گھر پہ آئے ہیں، اور جن سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کبوتر کب سے رکھے، کیسے رکھے اور کہاں کے پیچھے رہنے والے ہیں، ان کی معلومات ہیں۔ بھٹا بھائی جی شکیل بھائی، آپ دوستوں کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ پاکستان میں کس سٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستان میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ پاکستان کراچی میں رہا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پہ جدہ آ گیا۔ تو ابھی فی الحال جدہ میں ہی سیٹل ہوں، پاکستان کب جاتا ہوں۔ کافی لانگ ٹائم سے آپ یہاں سیٹل ہیں؟ ہاں، جدہ سے سٹی میں 42 ایئرس ہو گئے مجھے یہاں پہ سعودیہ میں۔ بہت لانگ ٹائم ہو گیا یہاں کی زندگی بات۔ اچھا، تو شوق جب سے آئے ہیں تب سے شروع کیا ہوا؟ شوق مجھے پاکستان سے ہی ہے۔ اچھا اچھا، شوق پاکستان سے ہے۔ بچپن میں ہم نے وہاں پاکستان میں کبوتر رکھے تھے، وہاں سے شروع کیا۔ پھر صحیح معنوں میں یہاں جو کبوتر رکھے وہ میں نے یمبو سے سٹارٹ کیا۔ اچھا اچھا، یمبو میں نے رکھے کبوتر تقریباً 1988 میں۔ اچھا اچھا، 1988 میں یمبو میں نے کبوتر رکھے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے میں مدینہ منورہ شفٹ ہو گیا۔ اچھا اچھا، کبوتر مدینہ منورہ لے گیا، اچھا تو 3 سال مدینہ منورہ میں رہا، وہاں رکھے کبوتر۔ پھر 2004 میں جدہ آ گیا، تو 2004 سے جدہ میں شوق ہے، یعنی کبوتر میں نے جدہ میں رکھنے، مدینہ سے جدہ لے کے آ گیا تھا کبوتر سارے، وہ میں نے مدینہ میں یعنی جدہ میں۔ اچھا، تو آپ دوستوں کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے استاد کا کیا نام ہے؟ میں پچھلے 2 سال پہلے استاد باعرفان معروف شخصیت ہیں جدہ کی، جی سب لوگ جانتے ہیں، نام ہے ان کا، میں ان کا شاگرد ہوا، تو اللہ کا شکر ہے رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ماشاء اللہ، بڑا نام ہے جی۔ ابھی 2014 میں چیمپئن بنے ہیں۔ 2014 میں، ہاں بالکل، پچھلے دنوں میں ٹورنامنٹ جیتا، کار بھی جیتی، کارکردگی اچھی ہے۔ ماشاء اللہ ہر سال کوئی نہ کوئی نمبر ان کا رہتا ہے، جب سے میں یعنی لسٹ میں رہتے ہیں، ہاں لسٹ میں ان کا نام رہتا ہے۔ تو اس دفعہ ماشاء اللہ ونر بھی رہے ہیں 2014 کے جدہ کے۔ تو آپ نے بھی ایک نام جیتا ہے؟ میں ماشاء اللہ ٹورنامنٹ میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ دوستوں کو دکھائیں گے؟ ہاں بالکل، یہ میری شیلڈ ہے، ماشاء اللہ، زوم کرتے۔ یہ 2014 G8 کا ٹورنامنٹ ہوا تھا، اس کے اندر 4تھی پوزیشن ہے میری۔ ماشاء اللہ، یہ سب ماشاء اللہ استاد باعرفان ہیں ہمارے استاد، ان کی رہبری میں ہوا ہے، سرپرستی کے اندر۔ ماشاء اللہ۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ کی ایک رسالہ نہیں ہے جو ہے، آپ پکچرز بھی آئی ہیں، یہ بھی ذرا دوستوں کو دکھائیے، یہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے۔ یہ پیجن اسپورٹس میں دیا، پیجن سپورٹس میگزین میں آیا ان کا، یہ بہت اچھی تصویریں ہیں ان کی ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ کے پاس کبوتر جو ہے کتنی تعداد میں آئیں گے، دوستوں کو بتائیں تاکہ ان کو تقریباً جو کبوتر ہیں میرے پاس 300-400 کے قریب کبوتر ہیں۔ 300-400 قریب ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے آپ کی؟ میں بالکل کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے ماشاء اللہ، تو کر لیتا ہوں بس ماشاء اللہ۔ تو ابھی کچھ دنوں میں اور ٹورنامنٹس انشاءاللہ، ابھی آپ کی تیاری مرحلہ ہو رہی ہے؟ حصہ لے رہا ہوں ماشاء اللہ۔ 3 دن کا ٹورنامنٹ ہوگا جدہ میں، حج کا ٹورنامنٹ 8 سال ہوتا تھا، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اچھا اچھا، تو آگے اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے بھی ہم نے دعائیں کی آپ کے نمبر بالکل بھٹا بھائی، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں ہماری محنت ہے، اللہ کرے رنگ لے کے آئے۔ تو جدہ کی تقریباً کتنی چھتیں جو ہے ابھی اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے کہ تقریباً 60 تک چھتیں جائیں گی، اچھا 60 تک جائیں گی۔
इस दफ़ा बनी मालिक भी ऐड क्या वजह है वन डे जो होता है टूर्नामेंट उसमें छतें बहुत ज़्यादा होती हैं, मेरा ख्याल है यहाँ परदेश है तो परदेश की वजह से कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और टाइम नहीं दे पाते इतना, 3 दिन या 5 दिन का टूर्नामेंट यानी परदेश में रह के करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, पाकिस्तान में तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तो ये है कि यार दोस्त हैं, ये हैं, वो आ जाते हैं, संभाल लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको खुद करना है, सारे काम तो आपको बहुत मुश्किल काम है, डिफिकल्ट है, ईजी नहीं है। तो काम छोड़ के आदमी बैठे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। आदमी पहले परदेश में है तो पहले काम देखे, उसके बाद फिर शौक देखे। बड़ी हिम्मत की बात है जी, आप जो है इतनी मेहनत करके जो है आप काम भी साथ करते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, कबूतरों का भी टाइम देते तो हैं। शौक है इसलिए कर रहे हैं, हाँ जी। तीनों चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं, शौक भी कर रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं और माशाल्लाह शौक घर भी देख रहे हैं, जॉब भी देख रहे हैं, सारा इसी वजह से, बस के शौक की वजह से। और आप जैसे भाइयों से भी मुलाकात होती है, इसी बहुत अच्छी हो रही है कि भाई आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बात हो जाती है माशाल्लाह। हम आपके पास काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, बहुत अच्छा शौक है आपका और बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के कबूतर हैं आपके पास माशाल्लाह, दिल खुश होता है देख के और बहुत खुशी होती है कि आपके पास इतनी अच्छे अच्छे जो नस्ल के कबूतर रखे हुए हैं। और अगर मुझे उम्मीद है अगर आपके पास थोड़ा और टाइम हो तो आप और भी ज़्यादा यकीनन, क्योंकि जो शौक है वो टाइम मांगता है। आप जितना टाइम देंगे उतना जो है कबूतर परवाज़ वही करेगा जो आप जिसको जो है सही जिस पे मेहनत करेंगे सही तरीके से। बिल्कुल, कबूतर मेरे ख्याल में जद्दा में बहुत से लोगों के पास जो है ना अच्छे कबूतर हैं, बहुत अच्छे हैं। जद्दा में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास कबूतर है। सिर्फ मार खाने की वजह यही है टाइम ना देने की वजह, हर टाइम ना आदमी देने की वजह से। नौकरी करता है यहाँ पे, कफिलों का चक्कर, कोई कफिलों के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई खामे के चक्कर में फंसा हुआ है, वो आदमी टाइम नहीं दे पाते। अच्छा कबूतर भी अगर उसकी सही खिदमत नहीं की जाए तो वो बेकार है, वो नहीं उड़ेगा जब तक उसकी सही खिदमत नहीं की जाए। तो माशाल्लाह जद्दा में लोगों के पास बड़े अच्छे अच्छे नायाब कबूतर हैं, अच्छे कबूतर हैं, बना के रखते हैं। बस टाइम का बस मसला है, यहाँ पे हम लोग ये भी कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इमरान माशाल्लाह आ गया है तो उसका भी अच्छा शौक है, उसने जद्दा के शौक को माशाल्लाह और उभरा है, उसकी वजह से काफ़ी शौक जो है लोगों के अंदर मज़ीद पैदा हुआ है। लोग इस तरफ वो अच्छे लोग, बड़े लोग कंपनियों में काम करते हैं जिनके अपने काम हैं, वो लोग भी इस शौक में आए हैं। तो माशाल्लाह इमरान ने जद्दा का शौक जो है वो बहुत अच्छा किया है, पहले की निस्बत अभी जो है वो बहुत अच्छा शौक है। अच्छा, आप जो है आपके डफ में तकरीबन कितनी की छतें होंगी जो आज साल लेती हैं? तकरीबन 6-7 आते हैं। अच्छा, क्योंकि बात वही है कि वो जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन का हर आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता, तो टाइम इतना नहीं दे पाता। एक दिन का शौक जो है जद्दा में तकरीबन हर आदमी कर सकता है, हर आदमी, क्योंकि जुम्मे के दिन अगर हो तो आदमी की छुट्टी होती है, तो यहाँ अक्सर जुम्मे को छुट्टी होती है, कुछ आदमी चलो तो जुम्मे को कर सकते हैं। यानी एक दिन का शौक तो मेरे ख्याल में जद्दा में 100 से ऊपर छतें चले जाएँ। अगर एक दिन का अगर शौक करें ज़्यादा से ज़्यादा तो जद्दा में 100 से ऊपर छतें जा सकती हैं, इसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो बड़े टूर्नामेंट है उसमें फिर लोग फंस जाते हैं कि काम देखें या कुछ शौक देखें, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं कर पाते। माशाल्लाह आपकी छत तो हमने पहले भी शेयर बहुत दफ़ा की है, तो बहुत अच्छे खूबसूरत आपका जो जाल बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत सेटअप है, तो बहुत अच्छी आपने सेटिंग की है माशाल्लाह, बहुत मेहनत की है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी क्या ख्याल है, दोस्तों से इजाज़त चाहें? हाँ बिल्कुल। अगर आप कुछ और कहना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो शौक हजरात कर रहे हैं वो प्रदेश में है, तो सबसे पहले अपना काम देखें, पहले रोज़ी की तरफ ध्यान दें। अगर वो सही है तो फिर आदमी शौक की तरफ जाए। प्रदेश में रह के सिर्फ इसी शौक को ना देखें, क्योंकि पीछे अगर आपकी फैमिली यहाँ है या पीछे है, पहला उनका हक है, बेशक बाद में फिर आप अपने शौक को देख सकते हैं। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले जो है वो अपने काम को तवज्जो दें, वो करके अगर आपके पास टाइम इतना बचता है कि आप ये कर सकते हैं तो उस तरफ आए। लेकिन ये है कि बराए मेहरबानी प्रदेश में रह के सिर्फ इसी काम को तरजीह ना दें, अपने काम को तरजीह दें। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है आपने। तो दोस्तों इसके साथ ही अब हम दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं।
اللہ حافظ.